Hello and welcome everyone to this week's Pulse Maharashtra with me, Vinaya Deshpande Pandit. I am the Maharashtra Chief of Bureau of The Hindu and your host for the show. And each week we take you through the most important story of the state, taking you to the perspectives behind the story. And this week, as the Supreme Court gave an ultimatum to the Maharashtra State Election Commission to conduct the long pending local body elections by January 2026, the state gears for elections, and I travelled to Nagpur this week where the NCP held its Chintan Shibir. At a time when the Maratha OBC tussle is at its peak, and a Maharashtra minister belonging to Ajit Pawar's party has gone to the court against the government's own decision to implement the Hyderabad Gazette, I sat down with Maharashtra's Deputy Chief Minister Ajit Pawar and senior party leader Praful Patel to have an elaborate discussion with them. In these exclusive conversations, I asked them why a party known to have its base in western Maharashtra decided to hold its meeting in Nagpur, which is considered to be the BJP's fortress, how the regional party known to represent the politically dominant Maratha community looked at the Maratha OBC tussle, and how did the party see the recent controversy about the voter revision list after Rahul Gandhi's fresh allegations, which included Rajura, a constituency from Maharashtra's Chandrapur area. After its dismal performance in Lok Sabha and a better performance in the state assembly elections, the party now takes stock of its strength, weaknesses and expansion plans. It was here that Ajit Pawar minced no words in warning his ministers that they will be asked to vacate their chairs if they do not prioritize party's works. Here are a few highlights. कोई ओबीसी के लीडरों का स्टेटमेंट आने के बाद ओबीसी को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे अपने ऊपर अन्याय हुआ है क्या, और मराठा लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये अपने को कुछ मिला है या नहीं. Definitely, there is no question of not addressing these issues. हमें ऐसा लगता है कि वो जीआर के कारण हमारे ऊपर अन्याय होने वाला है, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं होने वाला है. See, these are all sensitive issues. They need to be handled carefully because they have long-term implications. अभी इन्होंने एक नया इशू निकाला है, वोटों की चोरी. There are legal restrictions also. Constitutional restrictions are also there. तो ये भी फेक नैरेटिव है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है. Our party is committed to, I would say, the Shiv Shahu Phule Ambedkar ideology in Maharashtra or in the country. We are a party which represents the whole state. I have with me Maharashtra's Deputy Chief Minister and NCP's top leader Ajit Pawar. अजित पवार जी, द हिंदू से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज हम नागपुर में बैठे हैं. सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवादी, जो कि पश्चिम महाराष्ट्र में ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग है, या हम देखते हैं कि मराठवाड़ा में भी पार्टी ने कुछ कार्यक्रम किए हैं, विदर्भ में कैसे, नागपुर में कैसे, तो आज ये चिंतन शिविर नागपुर में लेने के पीछे पार्टी की क्या भूमिका है? कोई भी पक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, वो पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में काम करना चाहती है, और उसमें मराठवाड़ा में हमने ये एनडीए के साथ जाने के बाद हमने उत्तर महाराष्ट्र में शिरडी में शिविर लिया था. इस दफ़ा हम सब ने बैठकर डिसीजन लिया कि अपनी उपराजधानी है, वहाँ हम जाके नागपुर में एक दिन का चिंतन शिविर लेंगे. और इसीलिए हमने नागपुर चुना, क्योंकि अलग अलग एरिया में नेक्स्ट टाइम हम मराठवाड़ा में या वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाएंगे, उसके बाद हम कोकण में जाएंगे. ये तो हमेशा चलने वाला काम है, क्योंकि कार्यकर्ता भी चार्ज होना चाहिए, पार्टी की विचारधारा भी उनको समझ में आनी चाहिए, आगे की रणनीति अपनी क्या है, आगे की लाइन ऑफ एक्शन अपनी क्या है, उसके बारे में भी कार्यकर्ता को अगर मालूमात नहीं हुई, या
जो भी हमने 550 का हमने 550 को बुलाया था, लेकिन आए 1000, इसीलिए थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हुआ है। लेकिन आखिर कार्यकर्ता जब आता है तो मन से आता है कि मैं जिस पार्टी में काम कर रहा हूँ उसमें क्या चल रहा है वो सुनने के लिए वो आया है। तो इसी हिसाब से हमने नागपुर में डिसीजन लिया। और हमेशा मैंने तो कांग्रेस पार्टी से शुरुआत की, कांग्रेस पार्टी में भी शिविरें मैंने देखी है। और बाद में 10 जून 1999 में अपना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, तब के बाद आज तक की शिविरें मैंने देखी है। लेकिन तब के और आज के में बहुत फ़र्क है। तब अलग सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था। लोग अभी ज़्यादा करके पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आते, वो बैठकर अपने फेस टाइम में या यूट्यूब पे स्पीच देखते हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अगर उनको अच्छा लगा तो वो सुनते, नहीं अच्छा लगा तो वो बंद कर देते। ऐसा सब कुछ है। तो ये सब होते हुए हम आगे क्या करना चाहते हैं, हमारी आगे की रणनीति क्या हम कर रहे हैं। और अभी लोकल बॉडी के चुनाव जल्द से जल्द आने वाले, अपने सुप्रीम कोर्ट ने तो बताया 31 जनवरी से पहले ये सब खत्म होना चाहिए। और वो तो उनका आदेश है, वो करना ही पड़ेगा अपने यहाँ के स्टेट के इलेक्शन कमीशन को। तो इसके बारे में हम क्या करना चाहते हैं, ये हमारे सभी लीडर तो डिसीजन लेते हैं, लेकिन बाकी के जो हमारे विधायक है, एक्स विधायक है, हमारे पार्टी के वर्कर है, हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, सेल के हमारे अलग अलग सेल है, वो सेल के प्रेसिडेंट है, ये सबको हमारी कार्यकारिणी बड़ी है उसके, ऐसे सबको मालूमात होनी चाहिए। इसीलिए पूरा दिन का सेशन हमने रखा है। और हमने कहा हमेशा सेशन में पहले सत्र में 2-4 अलग अलग लोगों के विचार वो लोगों के सामने रखते हैं। फिर दोपहर लंच होने के बाद और कुछ लोगों का लीडर अलग अलग सेक्टर में काम, इवन सोशल मीडिया में भी काम करने वाले भी कभी कभी आते हैं और वो उनका विचार सबके सामने रखते हैं। और लास्ट में वो पार्टी के प्रेसिडेंट वो सब समारोह करते हैं। ऐसा चलता है। मेरा अगला सवाल इलेक्शंस को लेकर ही है दादा। राष्ट्रवादी की ये छवि है कि रूरल बेस वाली पार्टी है, मराठा बेस वाली पार्टी है। अब जब मराठा एजिटेशन हुआ है उसके बाद ओबीसी में भी गुस्सा हम देखते हैं। अब आपके पक्ष ने भी इसके बारे में काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? क्या हुआ है, हमने तो हमेशा बताया, हमारे महायुति के चीफ मिनिस्टर मिस्टर देवेंद्र जी ने भी बताया, एकनाथ राव जी, हमने सब ने ये बताया कि सबको जो भी उनका कहना है वो सामने सरकार के सामने रखने का अधिकार है। अहिंसा से जो भी वो करना चाहते हैं, सत्याग्रह हो या कुछ भी काम हो, वो कर सकते हैं। लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी ने कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो। तो ये सब होते हुए अभी हम देख रहे हैं कि जो डिसीजन बीच में हुआ, तब ओबीसी को सबको बताया कि आपको ये डिसीजन होते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी। डिसीजन क्या हुआ है, हैदराबाद गैजेटियर में जो पुराना रिकॉर्ड निजाम शाह के ज़माने का कुंभी होगा, वो खेती कर रहे तो वो कुंभी, पुराने ज़माने में वैसा करते थे, कहते थे, तो वो निकालो और अभी के उनके ब्लड रिलेशन को कुंभी का सर्टिफिकेट दे दो। तो यही डिसीजन लिया है और वही जीआर निकाला है। लेकिन ये जीआर निकालने के बाद कुछ लोगों के स्टेटमेंट के कारण, कोई ओबीसी के लीडरों का स्टेटमेंट आने के बाद ओबीसी को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, अपने ऊपर अन्याय हुआ है क्या। और मराठा लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये अपने को
कुछ मिला है या नहीं मिला है, अपने को क्या मिला है, ये वो सोचने लगे। तो हमारा इतना ही कहना है कि हम तो रिकॉर्ड देख रहे हैं, वो कमेटी भी है, न्यायाधीश की कमेटी हमने जो बिठाई है उसके डेट भी हमने बढ़ाए, हाँ शिंदे कमेटी का, तो ये सब चालू है। लेकिन हमारा इतना ही कहना है, किसी के ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारी लाइन है। किसी के भी ऊपर किसी का मुंह का खाना निकाल के दूसरे को देने का ऐसा हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। लेकिन फिर आप ही के नेता छगन भुजबल तो कोर्ट भी गए हैं, कह रहे हैं कि ओबीसीज के आरक्षण पे इस पे क्लियरली गदा आने वाली है। ऐसा उनका कहना है। मैं अभी उनके साथ ही बात कर रहा था, खाना खाने के बाद मैं उनके साथ बैठा था कि आज बहुत से पत्रकार मित्र मुझे मिले, मीडिया के लोग मुझे मिले, और सब ने ये आपका कल का स्टेटमेंट जो आपने निकाला वो हमें बोल रहे थे, मुझे प्रफुल्ल पटेल जी को, सुनील तटकरे जी को, दिलीप वैसे पाटिल साहब को, हम सब बैठे थे, नवाब भाई, कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा स्टेटमेंट किया है। मेरा इतना ही कहना है कि आप बार बार सब बोल रहे चीफ मिनिस्टर, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कि किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो जीआर है, हमें ऐसा लगता है कि वो जीआर के कारण हमारे ऊपर अन्याय होने वाला है। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में जाने का तो सबको अधिकार है। लेकिन इलेक्शन साल में हम देख रहे हैं कि मराठा एजिटेशन एक तरफ हो रहा है, एक तरफ ओबीसीज नाराज़ हैं, एक तरफ धनगर की तो पहले से ही मांग थी, अब वंजारी भी कह रहे हैं कि हमको भी एसटीज में आरक्षण दीजिए। तो इलेक्शन साल में ये जो डिमांड्स हो रही हैं, ये अनरेस्ट जो सोसाइटी में हो रहा है, उसको आप एक मंझे हुए पॉलिटिशियन के हिसाब से कैसे देखें? ये देखो, इसमें कुछ लोग जो बुरी तरह से हार गए हैं असेंबली का चुनाव, लोग पार्लियामेंट का चुनाव महाराष्ट्र में हम एनडीए हार गए, महाराष्ट्र में 31 उनके 17 हमारे, लेकिन असेंबली का चुनाव वो बुरी तरह से हार गए, इसीलिए वो बहुत सब डिमोरलाइज है। और ये ऐसा कुछ इशू निकाल के अपने को वोट्स का फ़ायदा होता है क्या नहीं होता है, ये कोशिश हमारे अपोजिशन वालों की चालू है। लेकिन हम हमेशा बोल रहे हैं कि हम शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से आगे जाना चाहते, हम उसी धारा से आगे जाएंगे, विचारधारा से, ऐसा हम बार बार बोल रहे। आज भी मैंने शिविर में शुरू के स्पीच में वैसा ही कहा, आज लास्ट में मेरा स्पीच होगा, वहाँ भी मैं इनको भी बताऊंगा, और इसके माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों को भी बताऊंगा। एक आखिरी सवाल जो नेशनल के बारे में है, बिहार में जो एसआईआर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसके हिसाब से रिविजन्स हो रहे हैं वोटर्स रोल में, उसको लेके काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है, लोग रास्ते पे उतर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। तो बिहार में जो सर रिविजन है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं बताऊं क्या, हमेशा रूलिंग पार्टी अपना काम करती है, डेवलपमेंट का, अच्छे योजनाएं लाने का। अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी के जो भी मुद्दे लोगों को अच्छे नहीं लगते, वो मुद्दे अलग तरह से उठा के लोग अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जिसको हम फेक नैरेटिव बोलते हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलने वाले हैं, ये इतना बढ़िया तरह से उन्होंने फेक नैरेटिव सेट किया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो भी नाराज़ हो गए, हमारा ये संविधान बदलने के बाद हमारा रिजर्वेशन का क्या होगा, हमारे आगे के जनरेशन का क्या होगा, हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, हमारे नौकरियां नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हम बार बार बोल रहे थे ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो फेक नैरेटिव पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त वो सक्सेस हो गए। अभी पार्लियामेंट का चुनाव होकर 14-15 महीने हो गए, अभी इन्होंने एक नया इशू निकाला है, वोटों की चोरी, या उसमें कुछ ना कुछ बदलाव वोटिंग लिस्ट में। तो ये भी फेक नैरेटिव है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है।
वो हमारे राजूरा विजुरा कोई कार्यकर्ता जाता है बोलता है, जो हार जाता है ना, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल हारने वाला नहीं था, मेरे घर में इतने इतने वोट है और उतने भी वोट मुझे नहीं मिले, घर के लोग कैसे मुझे नहीं दे सकते, ऐसा करते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपोजिशन लीडर के नाते राहुल गांधी भी बार बार यही मुद्दा उठा रहे। वो तो काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। आप अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, वहाँ कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आपको रिस्पांस नहीं दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो आपको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आपका सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट सुनने के बाद जो उनको ठीक लगता है वो उनका अधिकार है, उसके बारे में डिसीजन दे सकता है। ऐसा सब है ना, लेकिन वो छोड़ दिया और वो वहाँ का माहौल वो गर्म करना चाहते हैं और लोगों के मन में कि ये ऐसा कुछ करते हैं इसीलिए इनको यहाँ से हटाना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए, ऐसी इनकी राजनीति चल रही है। आप बहुत कम बार मिलते हैं दादा। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के बाद आप ही के सरकार पे तंज कसे गए कि अर्बन नक्सल के खिलाफ कहते हुए ये जो लिबरल प्रोटेस्ट है इसके खिलाफ सरकार की एक्शन होने वाली है। तो आपके खिलाफ ये जो क्रिटिसिज्म होता है आपकी सरकार के खिलाफ, इसको आप कैसे? आपने देखा कि ये जब बिल आया तो मैं खुद हाउस में था, ऊपर भी था, किसी ने अपोज नहीं किया, किसी ने नीचे नहीं किया, ऊपर नहीं किसी ने ऊपर। बाद में ये यहाँ मंजूर होने के क्या होता है, हमारे असेंबली में मंजूर होने के बाद काउंसिल में चला जाता है, तो यहाँ मंजूर हुआ तो वहाँ से दिल्ली से फ़ोन आने लगे कांग्रेस वालों को, अरे क्या तुमने मंजूर कैसा किया, अपोज क्यों नहीं किया। तो वहाँ के थोड़े बहुत उनके लोग हैं वहाँ के विधायक काउंसिल के, तो उनको बताया कि आप विरोध करो, ऐसा कैसा। और एज ए चीफ मिनिस्टर के नाते देवेंद्र फडणवीस साहब ने रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई इतने शांत से सब लोग सुन रहे थे और फिर बिल मंजूर के लिए डाला हाउस में स्पीकर साहब ने और तुरंत मंजूर हो गया। तो यू आर सेइंग देयर इज नो क्रिटिसिज्म। अभी क्या होता है, दिल्ली वालों का कांग्रेस का अलग कुछ ना कुछ कहना है। जब वो हार जाते हैं, अपोजिशन में बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या इशू निकाल के अपने को फेक नैरेटिव हम डेवलप कर सकते हैं। एक तो लोकसभा में उनको या अच्छा संविधान के बारे में, अभी वापस वो नहीं चलने वाला संविधान, लोग बोलेंगे कहा संविधान में तो उनका आदर करते हैं, संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब है। Thank you so much, Ajit Pawar, for speaking with the Hindu. This was Maharashtra's Deputy Chief Minister Ajit Pawar. This is the first time NCP has held a state-level shibir, Chintan Shibir as you call it, in Nagpur. The fact that this location has been chosen has raised many an eyebrows. Everyone's asking how is it that NCP, which primarily focused around Western Maharashtra, looked at Marathwada at times, now is looking at Nagpur. Well, why not Nagpur? We are a party which represents the whole state. I myself come from this region, and we should focus on Vidarbha more and more, as much as we would like to focus on the rest of the state also. This Chintan Shivir in Nagpur is specifically brought in to bring Vidarbha more into focus in our party activities. We want future elections a bigger presence of NCP. We were fighting very few seats right from historically, not now that we are in Mahayuti, even when we were in alliance with the Congress and Pawar Sahab was the leader of the party, we gave most seats to the Congress and therefore our party could not progress. We have now taken a decision that we will strengthen NCP more and more in Vidarbha. And this is a chance. Now you see these are local body elections. There need not be a Mahayuti in the local body elections because they are small elections. You can't amicably distribute seats amongst three alliance partners. So this is a chance to give our workers an opportunity and to showcase our strength. Does it mean that Mahayuti will fight together or the individual
parties will take a call at the local level? See, all decisions on alliances with our alliance partners, if at all, will be taken only at the local level. Most probably, as I am not yet finalized yet, because no decision formally has been taken, but BMC elections are the only place where there is definitely, because they are larger elections and they have, all three parties have got a space where we can fight in an alliance. So we feel that BMC may be the only local body election where the Mahayuti as such will be fighting. All other places will be left to the local leaders. If they are able to forge an alliance, so be it. If not, post-election also, we will try to come together. So NCP's Chintan Shibir is happening on the background of a specific political situation in Maharashtra, where you are seeing that there is demand for reservation that is coming up from different communities. The Banjara community is now up in arms for reservation. You're seeing the tussle between the OBC and the Maratha communities themselves. Chhagan Bhujbal has been at the forefront of it. How do you see these reservation and agitation demands panning out in an election year in Maharashtra? Well, let's see, the OBC community had got a reservation post-Mandal, and it is here to stay, and we are all fully in support of the OBC community, and we also do not wish, or we will never allow a dilution of the OBCs or encroachment into the OBC by other communities. Equally true is that the Maratha community has been demanding reservation for many, many years, and some important decisions have been taken by the state government in the last few weeks, and definitely that will go a long way in assuaging the demands of the Maratha community. If there are some other issues which definitely need to be looked at, I'm sure the state government, Devendra Fadnavis, has repeatedly said that we will always protect the OBC community's interests. There are other communities, of course, Dhangar community has been asking for reservation for a long time. There are some other demands also which are there. Definitely, there is no question of not addressing these issues. But at the same time, you see, we have to also, see, these are all sensitive issues. They need to be handled carefully because they have long-term implications. There are legal restrictions also, constitutional restrictions are also there. So we will plan everything, and our party is committed to social inclusion. Our party is committed to, I would say, the Shiv Shahu Phule Ambedkar ideology in Maharashtra or in the country, as well as we treat everybody as equals. We are the only party which has a Muslim minister. We give 10% of our seats in Vidhan Sabha to the minorities. We gave we gave one MLC. There's only one person in the upper house who's a Muslim, and that is representing our party. So we treat everybody on par. We don't want to discriminate, and at the same time, we stand for all people who think that they are in need of government support or our political support. We will stand by that. One last question. What does the party aim to achieve with this Chintan Shibir today? Well, every party has to have some, dialogue, internal dialogue. Every party also has to set a certain goal, a certain direction, certain ideology. Therefore, after this meeting today, and we have made a special effort to divide people of this Shibir into 10 different groups, 10 different subjects. So each person who has come here doesn't just listen to speeches morning to evening and go back. He comes with an idea of inclusion. He gets a chance to speak in that, or he or she will speak in that group. And then the findings of that will be placed before the larger assembly. And then post that, we will have a Nagpur declaration, which will give an impetus to our cadre to be able to tell the people what we stand for and what we wish like to do for them. So thank you so much for your precious time for The Hindu. This was Praful Patel speaking exclusively to The Hindu. Thank you for watching.